Hello everyone, welcome back. Most of us are confused regarding off-campus placements and we don't know the right path to do so. So, to guide us today, we have a very special guest with us, Miss Sheetal Jain ma'am. She is from batch 2019-2023 and she's from CS branch. And she recently got placed at Tala as a software development engineer with a package of 20 LPA. And she even aced two service based company, that is TCS and Persistent. Congratulations, ma'am, and welcome to UEC Journalism Society. Hello, everyone. Thank you, Meenakshi and Yuvraj, for inviting me for this wonderful interview. I'm excited to be here, and I hope, like after this interview, I would be able to help students. I'll try my best to answer all your questions. Yeah, so we can start. So, ma'am, we begin with the first question. Ma'am, does it really matter from which college you belong, whether you are from IIT, NIT, or government college? If I say in one go, then definitely it doesn't matter. But when I think about it, then it matters somehow. To be very honest, it matters because when it comes to off-campus placement, you have to be good in every sort of things. Like I would say, whether it comes to open source, your personal branding, your ability to solve coding questions, and it's overall all your profile, like how you stand out yourself. It matters a lot. But when it comes to on-campus placements, you have some privileges, right? Because you belong to a particular college and they help you to ace your on-campus placements because they are bringing companies to your college, and you don't have to go through that, filling a hell lot of applications that I did, because it's a time-consuming process, right? To be very honest, जब मैं apply कर रही थी, you won't believe this, but I applied to almost 250 or 300 companies before acing Tala. So वो बहुत पेन करता है, बहुत ज़्यादा, because आपको आपका कुछ टाइम, like बहुत सारा टाइम, not कुछ टाइम, बहुत सारा टाइम you have to spend in filling out those application forms. But when it comes to on campus, definitely like your college is handling all those things. You don't have to worry about like companies, application forms, and nothing. But yes, when it comes to skills, on campus ho ya off campus ho, it doesn't matter. You have to be very good in solving questions, your system design, and your profile, like your resume. It means a lot. It doesn't matter whether you are going for on campus or off campus. Yes, ma'am. Talking about the skills, what are the most important skills that are required to get a good placement, whether on campus or off campus? So being a fresher, like if you want to crack offers, especially in like the software development, or you want to go in the software development domain, then you have to be good in solving coding questions. By coding questions, I means I meant like you have to be very good in your problem solving capability should be very good, right? This is the basic minimum criteria for acing any of the PBC or service based company. Next is system design. Like most of the companies don't ask the system design questions, but if you are going for off campus, then you have to be good in system design also. And apart from this, definitely your core CS fundamental subjects, because without those subjects you can't do anything. So these three things are most important. First, you should be very good in solving DSA questions. Second, system design. And third, like most important, CS fundamentals, because that's what you are learning for the entire 4 years. And apart from this, like these three are the basic minimum criteria. Like I would say, if you are not good in three things, then I don't think so you would be able to get on campus or off campus placements. But if you are going for off campus or on campus also, like it depends person to person. Like if you enjoy open source, or if you love to do CP, like CP is a sport, right? You can't compare CP or DSA is something you have to be good if you are in the software development domain. But CP is a sport. If you enjoy doing solving competitive programming questions, then you can do it. It's an option for you. So you have to be good in CP. Like it's just a kind of something. I can't say you have to be good in it,
बट इफ यू एंजॉय सॉल्विंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस तो वो प्लस पॉइंट हो जाता है वहां पर, इफ यू आर गोइंग फॉर ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस, क्योंकि ऑन कैंपस में भी अगर आपका सीपी है तो वो आपको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ओवर अदर कैंडिडेट, एंड ऑफ कैंपस में तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है. इसके बाद ओपन सोर्स एक बहुत ही ज्यादा मतलब आपको एकदम आपके प्रोफाइल को स्टैंड आउट कर देता है, क्योंकि वो यूजुअली कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं करते होते हैं. लाइक इफ यू बिलोंग टू अ नॉर्मल कॉलेज तो वो नहीं करते होते हैं बच्चे. इफ यू डूइंग तो आपने अपने आप को एक स्टेप ऑलरेडी आगे कर दिया है. So I would say like 3 basic requirements are DSA, system design, CS fundamentals, and definitely आपने प्रोजेक्ट्स तो बनाए हुए होते हैं जो कि हम करते ही हैं. लाइक माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट हम कॉलेज में बनाते ही हैं, तो दैट इज इन आवर कोर्स, राइट? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट सो मच. बट अगर आपका कॉलेज नहीं कर रहा है तो क्रिएट 2 or 3 प्रोजेक्ट्स जो काफी अच्छे हों और आपके रेज्यूमे में वो जा पाए. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो 2 एक्स्ट्रा चीजें हैं दैट आई मेंशन्ड, ओपन सोर्स एंड सीपी. Ma'am, apart from talking about the skills, can you, ma'am, please explain the procedure from applying for the any company and getting placed at? Yeah. So when I talk about my journey, like how I started, so actually I spent my first years basically in exploring things. I was just exploring. I didn't know about LinkedIn, what it is. I didn't know about Twitter. I don't know anything. To be very honest, I started from zero. This is very, very true, because मेरी family में no one is software engineer. I'm the first software engineer from my family, and being a girl, you can understand like how much it was difficult for me to come here, like where I'm standing right now. So literally I started from zero. Then like first year mein I was very upset with the like surroundings, because that was not I expected. And जब मुझे first year में मैं उस atmosphere में थी for the initial 6 months, I was very depressed. I want to be very candid here, but yes, I was very depressed because I was like, We no, often don't get that environment which we want in the college. yes, definitely. So I was like, no, Sheetal, you have to do something. You have to do something. You can't be in this space. Then, thankfully, like to be very honest, I should not say this thankfully, but COVID आने से मुझे तो बहुत personally फायदा हुआ है. That was a golden opportunity for me, and I used that time. So initial 6 months I was in college. Then COVID आ गया. कोविड में मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि ओके, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है, उसको एकदम अपडेटेड रखना है, यू हैव टू बी एक्टिव ऑन दैट. फिर मैंने काफी एक्सप्लोर किया, मतलब लिंक्डइन के थ्रू ही मैं लोगों से कनेक्ट हुई हूँ. एंड देन आई गॉट टू नो कि ऐसे इवेंट्स भी होते हैं, अगर इनमें जाते हैं तो ये फायदा होता है, यू गेट टू कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल. वो किया मैंने. एंड देन कोविड के टाइम पे मैंने बहुत सारा अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई स्टार्टेड सॉल्विंग डीएसए क्वेश्चंस एकदम सीरियसली बाय द एंड ऑफ माई सेकेंड ईयर. मतलब मैंने अपना पूरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का हाफ तक यू कैन से कि मैंने डेवलपमेंट में ही स्पेंड कर दिया था. सेकेंड ईयर के हाफ तक आई वॉज लाइक वेरी मच फेमिलियर विद जावा, J2EE, एंड मैंने प्रोजेक्ट्स बना लिए थे. मेरा डेवलपमेंट काफी अच्छा हो चुका था सेकेंड ईयर के एंड तक. और लाइक देन आई थॉट I should start doing this DSA thing also, क्योंकि मैंने इसको अवॉइड कर दिया है, एंड विदाउट दिस मैं OA भी क्लियर नहीं कर पाऊंगी. देन हाउ आई वुड बी एबल टू गेट इनटू कंपनी जो मेरा ड्रीम कंपनी है या जो मैं एक्चुअली करना चाहती हूँ. सो देन थैंक यू, लाइक बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स इस चीज को बोलते हैं कि दे आर गोइंग कॉलेज जस्ट फॉर हैविंग फन, एंड ठीक है, फ्रेंड्स बनाएंगे, क्लब सोसाइटीज ज्वाइन कर लेंगे, मजे करेंगे, एंड देन घर आ जाएंगे. बट आई वॉज नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने वहां से बहुत कुछ सिलेक्टेड 2-4 फ्रेंड्स को चूज किया. मतलब यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट, राइट? बिकॉज जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा ही आपका पर्सनालिटी बनता है, ऐसे लोग बोलते हैं. एंड एक्चुअली ये होता भी है कि आपके आसपास जैसे लोग रहते हैं आप वैसा ही ग्रो कर पाते हो फिर. सो वन ऑफ माई फ्रेंड, वो पहले यूईसी में था, देन वो NIT जयपुर चले गया. लाइक उसने 1 साल यूईसी में ही प्रिपरेशन की, बिकॉज उसको ऐसा लगा कि नहीं, आई वांट टू गिव इट अ वन मोर ट्राई. देन ही रीअटेम्प्टेड फॉर JEE, and then he cracked NIT Jaipur, and he is doing great in CP. Like he is like my I would say he was constantly pushing me, Sheetal, do it, at least solve 2 questions daily. I am here to help you out if you have any doubts or something. So with his help, I was
able to start DSA, and वो eventually मेरा एक schedule बन गया था कि मैं daily के 2-4 question solve करूंगी. मैं YouTube से ही सब मैंने सीखा. And yes, this is my message to everyone from UC. Don't spend a single penny for learning any skill related to computer science. It's my request. And please don't do this, because I got to know like so many students are spending a hell lot of money for learning these skills, which you can easily learn through YouTube channels and all. And YouTube is a great platform for us, like for being a software. If you want to be in the software domain, then YouTube is a great platform for you to learn any skill. So don't spend even a 1 rupee on anything if you want to learn skills, right? So उसकी मदद से I started watching YouTube videos, and फिर मैंने DSA में भी एक अच्छा grasp कर लिया था. मतलब I started with basic questions, and now like today if you open my profile, I solved almost 400 plus questions. So वो काफी मैटर करता है, राइट? कि मैंने डेवलपमेंट तो कर लिया था सेकेंड ईयर के हाफ तक, पर DSA नहीं किया था. एंड इफ यू नो कि सेकेंड ईयर के एंड तक काफी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, मतलब लाइक गूगल स्टेप इंटर्न हो गया या दूसरी चीजें हो गई. I worked on my LinkedIn profile. My resume was awesome. Everything was great. Like I was getting messages on LinkedIn, on LinkedIn from LinkedIn's recruiter, Microsoft, D-Shaw. Like people were approaching me, and I was like, "Great, Sheetal. At least like you stand at this place. Like people are approaching you for internship, and like this much about opportunities." So I was very happy. But then when I appeared for their OA, that was a very tough time for me, because everything was going good, but I was not able to clear OA just because of one thing, because I was not good enough in solving DSA questions. So that hit me so hard, and to be very honest, I was very upset, क्योंकि मैंने एक चीज पे तो ध्यान दे लिया था. Like my resume was good, my LinkedIn profile was good, people were like happy with my profile, but जो चीज मेन चाहिए थी अंदर घुसने के लिए, इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए, वही नहीं था. आई वॉज नॉट गुड इनफ विद DSA क्वेश्चंस. फिर मैंने बोला नो, अब मैं इस पे ही ध्यान देने वाली हूँ, मुझे अब ये करना है किसी भी कीमत पर. सो मैंने पूरा सेकेंड ईयर से और थर्ड ईयर के, आई वुड से पूरा थर्ड ईयर का हाफ पार्ट भी तुम बोल सकते हो, और सेकेंड ईयर के मिड से मैंने स्टार्ट कर दिया था. एंड at the beginning of my third year, मैंने अपना फर्स्ट इंटर्नशिप क्रैक किया था. इट्स अ स्टार्टअप, इंदौर बेस्ड स्टार्टअप है वो. वहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट इंटर्नशिप क्रैक किया था. एंड इनिशियल 6 months वर द लाइक नॉर्मल, लाइक 3 months वर ट्रेनिंग पीरियड एंड ऑल. देन आई डिड इंटर्नशिप देयर, एंड वहाँ से मेरा सब कुछ चेंज हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वहाँ से मैंने कंटेंट क्रिएशन भी शुरू कर दिया था लिंक्डइन के ऊपर. And I started talking about my learnings, experiences, how things are going for me. Like if I'm appearing for interviews, तो कहाँ problem आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है. I started everything. I started content creation over LinkedIn, and it worked for me. Like people started liking my content. They're like the way I'm sharing my learnings, वो उनको बहुत help कर रहा है. Even some of the people from Google, Microsoft also like messaged me कि मैंने जिस तरीके से वो कंटेंट शेयर किया था तो उनको हेल्प हुआ एक किसी अप्रोच में, या दे गॉट टू नो अबाउट दैट स्पेसिफिक टॉपिक काफी अच्छे से. सो आई वाज लाइक ओके, वहां से काफी कुछ अच्छे से हुआ. लाइक मेरा जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो काफी स्टेबल हो चुका था. पीपल स्टार्टेड नोइंग अबाउट मी. देन यहाँ तक मेरा DSA भी बहुत अच्छा चल रहा था. मतलब मैं DSA में भी अच्छा कर चुकी थी, और मेरा इंटर्नशिप अच्छा चल रहा था, पर्सनल ब्रांडिंग भी अच्छा चल रहा था. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि ड्यूरिंग कोविड मैंने हैकेथॉन्स में भी काफी पार्टिसिपेट किया था. मतलब 2020 से लेकर 2021 के मिड तक मैंने काफी हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ऑनलाइन हैकेथॉन्स होते थे, एंड इट वाज वेरी इजी टू बिल्ड समथिंग. लाइक अगर मुझे बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी आता था, तो मैंने वहां पर अपना बोला लोगों को कि यार प्लीज आओ ना, टीम बनाते हैं, प्लीज लेट्स डू दिस, हैकेथॉन करते हैं. एंड हम एक हैकेथॉन जीते भी थे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का था. लाइक इट वाज एन इंटरनेशनल हैकेथॉन, एंड वी वर द रनर अप. सो डोंट स्टॉप योरसेल्फ, लाइक डोंट स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप किस चीज में अच्छे निकल सकते हो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस. ठीक है, बी प्रोसेस ओरिएंटेड, डोंट बी लाइक ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं इसमें तो नहीं जाती हूँ. डोंट सेल्फ रिजेक्ट योरसेल्फ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो मैंने कभी वो नहीं किया. आई डिड एवरीथिंग. लाइक कम्युनिटी वर्क तुम मेरा देख सकती हो ऑन लिंक्डइन और ट्विटर. मैंने ऑर्गेनाइज करवाए वो इवेंट्स भी, ताकि मैं अपने
तब बता पाऊँ लोगों को कि यार what I'm doing, like शीतल जैन नाम की एक लड़की है, she belongs to like कुछ कॉलेज है, वहाँ से वो belong करती है, पर उसको ये सब मैटर नहीं करता है कि वो किस जगह से है या वो कौन से टीयर वाले कॉलेज में है या उसने अपनी उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, कुछ मैटर नहीं करता है. जो अभी आप कर रहे हो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा. सो आई वर्कड ऑन दैट. एंड देन जब मैंने अपना हॉटवेक्स इंटर्नशिप खत्म किया, सो देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स अगेन, बिकॉज मुझे ऐसा हो गया था कि आई हैव टू कीप अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स एंड आई हैव टू कीप डूइंग on it, because I was not doing internship just for the sake of like completion certificate and all. I was doing it for actual gaining some, industry experience or how things works in industry. It's completely different. Like, it is not just solving DSA questions and you will get to know what work you will do for industry. That is completely different. So मुझे ऐसा हो गया था कि नहीं, मैं इंटर्नशिप्स तो करूंगी, बिकॉज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी थी बाय दैट टाइम. एंड मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि मैं कुछ भी चीज़ के लिए अपनी फैमिली पे डिपेंड रहूं या उनसे कुछ भी हेल्प लूं, बिकॉज मैं सब कुछ अपना खुद से कर रही थी बाय द टाइम. तो मुझे ऐसा लगा था नहीं, अब तो इंटर्नशिप्स करते ही रहना है. फिर मुझे ऑटोविज जो है उन्होंने खुद अप्रोच किया था थ्रू वन प्लेटफॉर्म कि दे वांट टू हायर मी फॉर द बैकएंड प्लेटफॉर्म development engineer role, and it is completely related. Like in Hotwix I worked on Java, Mocky and Java related frameworks. Like Java is my primary language, but then they hired me for Python, like Google BigQuery, GCP, which is completely different. Like it is not in my domain. But then I was like, okay, let's take up this challenge, maybe, like, because this is what software industry wants from you, right? आपको बहुत flexible होना होता है. You can't be that rigid person. मैं Java में काम करती हूँ तो मैं Java में ही करूँगी. I'll not switch to any other language. So I did that. And 6 months का मेरा वो internship था. That was very good. Like he was like, my manager was very impressed with me. He was like, अभी industry की हालत we all know, like क्या चल रहा है, layoffs are on and they don't, like उनके पास position नहीं था for me. So they're like, we are not offering you, we can't offer you because of some present circumstances. But अगर वो कर सकते थे तो then definitely I cracked that also. Like they wanted to, he wanted to hire me as a SD also. But like circumstances we all know. And then last I applied for Tala in September 2022 through remote OK website. Like ये किसी को नहीं पता है कि मैंने टाला का कहाँ अप्लाई किया था क्या नहीं. So I applied through that remote OK website. If you know about, like, there are so many websites for applying for remote jobs specifically. So I applied for Tala through this remote OK website in September 2022. And then in December 2022, I got the mail from Tala hiring manager, like, and the mail was like, Sheetal, we are skipping that OA round for you. We want to invite you for interview directly. I was like, okay. I was, to be very honest, because Tala is something that I was looking for. क्योंकि रिमोट जॉब मेरा हमेशा से ड्रीम था. मुझे हमेशा से रिमोट जॉब चाहिए था. आई डोंट वांट टू बी इन दैट बैंगलोर गुड़गांव वाला इतना. आई डोंट वांट टू बी देयर. आई वांट टू बी विद माय फैमिली एंड हैव फन. सो मुझे रिमोट जॉब चाहिए था फर्स्ट वो. एंड दे ऑफर अ वेरी गुड कॉम्पनसेशन, एज वी ऑल नो. लाइक द बेस पे दे ऑफर इज वेरी गुड. सो I was like, no. And over this, like, they're offering me the role जो Spring Boot and Java था, and which I really enjoy. So I was like, okay, now I have to, anyhow I have to crack this interview because this is what I'm looking for and I want this job at any cost. I started preparing. मेरा first round around December end में हुआ था. And they asked me like first round jo tha, in that they asked me 2 DSA questions. Both were medium DSA questions. Ek string par tha and ek array based tha. Like they didn't ask much about the high level data structures like tree and graphs, because like Tala is not a very, it's a startup. Overall it's a startup, but a stable startup because founded in 2015, so we can say it's a stable startup now. So they didn't ask me questions from the high level data structures. So I was able to solve both the questions very smoothly because as I was preparing for it from a very long time. So finally I did that this time. And then for the next round, they asked me a system design question.
And to be very honest, I was not that much prepared for system design by that time. And in that interview, whatever I did is just because of my basic understanding, like whatever I have learned so far about system design and how we have to, present ourselves in such in system design interviews. So मैंने प्रिपेयर कर लिया था आफ्टर फर्स्ट इंटरव्यू, जब मुझे आ गया था मेल कि यू आर क्वालिफाइड फॉर द सेकंड राउंड एंड यू आर गोइंग फॉर दैट. सो मैंने प्रिपेयर कर लिया था इतना, तो मैं कर पाई, मतलब काफी अच्छे से आई सॉल्व द क्वेश्चन. एंड देन मुझे पता पड़ा कि 19th जनवरी, मतलब 19 जनवरी was my joining date as an intern, and I got the mail on 1st January. I 1st or 2nd January I got, like मैंने अपना न्यू ईयर बहुत अच्छे से शुरू किया था. I was very happy. And mail में like the compensation they were offering and everything was like whatever I have worked for. To be very honest, जितना हार्ड वर्क कर सकते हो ना, हमेशा करो. दिस इज माय मैसेज टू एवरीवन कि हर चीज वर्थ है, हर चीज वर्थ है. इट माइट बी पॉसिबल कि आपको वो अभी ना मिले उसका रिजल्ट, बट आफ्टर सम इयर्स, लाइक आफ्टर 2 years, 3 years, 5 years, आपको उसका पूरा रिजल्ट मिलेगा. एंड आई गॉट दैट बिकॉज मैंने वो जो 3 साल इतना स्ट्रगल कर करके खुद को किया था. एंड आई वाज फेसिंग अ हेल लॉट ऑफ रिजेक्शंस. जहां अप्लाई करती थी रिजेक्शंस ही आते थे, बट यहाँ पर फाइनली गॉट दैट. एंड देन आई स्टार्टेड माय इंटर्नशिप. आफ्टर दैट इंटर्नशिप में like they hired some other interns also, but I was the only one who cracked this SD, who converted the internship into full-time employment role. I'm the only one, and yes, now I am working as an SD for them. So this is my journey. Okay, ma'am. That's we are really so happy to hear that entire journey and how you started from zero and now you became a hero in that field. And we are really glad. I'm Talking not about hero. no, but ma'am, the way you turned this COVID into an incredible opportunity and you grabbed that opportunity and worked. It very few people do that. Like really, we are really glad to hear that. And moving forward, regarding the interview process, what things one need to keep in mind while cracking the interview? Like if we talk about the overall interview, including HR, technical, whatever interview questions they ask. I would say, like when I let's not talk about skills here because that is mandatory. If you don't have the skills, then you can't even be in that interview panel, right? You can't be in the interview. So apart from skills, one thing that is more important is be confident. If you are explaining any concept, be very clear. Like whatever you are explaining, speak softly, calmly, don't be in hurry, be confident. Then that matters a lot. Like interview always see this, like how she's explaining, like how he or she's explaining the concept, how much things are clear to her, and how confidently she's able to explain whatever is going in her head. That is more important. We can't like always explain whatever is going in your head. That is more important. Don't be like the quite I got to know from some of the people, like they're like very quiet during the whole interview and they didn't say anything, and in the end they were like, okay, I solved this question and this is my answer. So that is not an interview, right? Interview should be a conversation, should be like a conversation, like you are having a conversation with your interviewer and you both are enjoying. Because इंटरव्यू को अगर आपने एकदम ऐसे बना दिया ना कि कॉलेज एग्जाम है जहां पर एकदम आपको साइलेंट रहना है और आपने अगर इधर से इधर फेस किया है तो वो टीचर आके आपकी कॉपी पर ऐसे कुछ कर देगा, तो वो इंटरव्यू नहीं होता है. इंटरव्यू एक कॉन्वर्जेशन होना चाहिए जहां पर आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो आप आपके इंटरव्यू से शेयर करो और वो भी आपको हेल्प करते हैं. लाइक अगर आप किसी चीज में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है या आप कहीं पर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आस्क क्वेश्चंस. जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो पूछो, पूरा क्लियरली सब कुछ कंफर्म करो कि ये मेरे दिमाग में चल रहा है एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद दिस अप्रोच. एम आई फॉलोइंग द राइट अप्रोच? तो they are always open to help you, so don't ever hesitate to ask for help because everyone is here to help each other out, right? This is interview, this is not your exam. When we went through your LinkedIn profile, we get to know that you didn't even wasted 1 month from 2020, January 2020. And what was role of internships in your placement?
Yeah, I think I already talked about this before also. क्योंकि अगर internships नहीं होता, इतना profile strong नहीं होता, if I didn't participate in hackathons or open source programs or community events, like whatever I have done so far, तो शायद तक चीजें नहीं हो पाती जैसे अभी वो turn out हुई है, right? आप लोग लाइक इफ यू बिलोंग टू दैट प्लेस ना जहाँ आपको पता है, सबसे पहले तो रियलिटी को हमेशा दिमाग में रखो. व्हाट इज द रियलिटी? डोंट बी इन दैट फैंटेसी वर्ल्ड कि 4 साल एग्जाम दे देते हूँ फिर देखेंगे यार जो भी होगा, राइट? अगर आप उसमें हो तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा. दिस इज द टाइम टू डू व्हाट यू वांट टू डू, क्योंकि अभी जो करोगे वही बाद में मिलने वाला है 4 साल बाद भी. तो मुझे तो शुरू से क्लियर था कि जब मैं वहां पर गई और मैंने सब कुछ देखा कि यार कैसे क्या क्या चल रहा है और ये सब कुछ तो मुझसे नहीं हो पाएगा. तो मैंने बोला कि मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने काफी खुद को मतलब तुम लोगों ने मुझे कभी कॉलेज में शायद तक देखा भी नहीं. We haven't seen you. We do Yes. not see any of the student from CS branch. We rarely see. यस यस, तुमने मुझे कभी नहीं देखा होगा. Yes, ma'am. मेरे अलावा लाइक 2-4 बच्चे और हैं. आई लाइक वुड लाइक यू नो अबाउट देम. आई डोंट नो जानते हो नहीं जानते, बिकॉज वो भी मेरी तरह एकदम अलग रहते हैं. हर्ष शर्मा है एंड हर्ष सेठी भी है. लाइक उन लोगों का नाम लोगों को जरूर पता है, पर वो लोग भी अपने करियर में काफी अच्छा कर रहे हैं अभी. तो हमारी बैच के ऐसे कुछ ही बच्चे हैं, लाइक कुछ लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो तो उनका अलग पाथ हो गया एंड दे क्रैक्ड इट विद वेरी गुड रैंक्स एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम. बट हम लोग जो हमको क्लियर था कि नहीं, वी वांट टू like start our jobs just after completing our graduation. So हम लोग काफी अलग ही रहे हैं. हम लोग ने कभी भी ऐसे पार्टीज और क्लब्स सोसाइटीज इन सब में इतना इन्वॉल्वमेंट कभी दिखाया भी नहीं है, मतलब इवेंट्स वगैरह में, क्योंकि वी वर फोकसिंग ऑन आर थिंग्स कि यार ये नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा. तो हम लोगों ने वही किया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, इंटर्नशिप्स जितनी करोगे तो सामने वाला तो तुमको ही प्रायोरिटी देगा. फिर भली टियर 1 टियर 2 वाला भी अगर इंसान है और विदाउट एनी एक्सपीरियंस है और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है और तुम दोनों का स्किल्स एकदम सेम है, लाइक होता है ना ऐसा, स्किल्स में तुम दोनों सेम हो पर यू हैव एक्सपीरियंस, तो तुम्हारे हिसाब से किसको प्रायोरिटी मिलेगी? डेफिनेटली यू विल गेट प्रायोरिटी. तो वो तो तुमको लाइक ये तो किसी को भी क्लियर होना चाहिए कि अगर उनको स्टैंड आउट करना है और किसी और से ज्यादा खुद को आगे रखना है तो he or she should work on these things also. Ma'am, any of the internship that you want to personally recommend those who are preparing for placements? Internships, it's just like jitni bhi don't go for that completion certificate wali internships, because I am going through a lot of posts, like LinkedIn post around these days where people are posting like they're working on this project and now they got the certificate and all. So don't do like this kind of stuff. And most important, always do paid internships. Don't go into this trap of unpaid internships and all, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया unpaid work. मैंने शुरू से paid internships ही की है. एंड अगर आपको ऐसा है कि कहाँ से ढूंढे, नहीं, बच्चों को बहुत बार होता है कि उनको गाइडेंस ही नहीं मिलता है कि वो कहाँ से इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल करो, आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि कहाँ पर आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. और अप्लाई करने के पहले एटलीस्ट रेज्यूमे अपना स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि अगर रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग नहीं है, और रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो मैंने इतना सारा काम किया है ना वो करना पड़ता है, तब जाके रेज्यूमे में कुछ लिखने का होता है. लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ स्पेसिफिकली. अगर तुम किसी और का भी देखोगे ना जिसने इंटर्नशिप्स क्रैक की है, या बहुत सारे अपने लाइक बहुत सारे लोग हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने पहले काम किया है ताकि रेज्यूमे में कुछ लिख पाए. देन दे लाइक वेंट फॉर अप्लाइंग इंटर्नशिप्स, और फिर वो क्रैक कर पाए, क्योंकि अगर आपने काम किया है तभी तो इंटर्नशिप मिलेगा ना. मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया है अपने ही कॉलेज से, एंड देयर लाइक, मैम ये मेरा रेज्यूमे है, कैन यू प्लीज रिव्यू इट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? I was like, dude, please do something. Like, you created a one login page and you are calling it a project. How can you say this like this is a good project and you can move forward with it? Because this is not. At least 2 या 3 प्रोजेक्ट्स तो ऐसे बनाओ कि रेज्यूमे में लिखने, उनके बारे में कुछ लिख पाओ, एक समरी दे पाओ वहां पर. कम से कम 2-3 हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, ताकि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का सेक्शन होता है उसमें कुछ लिख पाओ कि मैंने ये सब काम किया है. अगर तुम क्लब या सोसाइटी में भी हो कॉलेज में, तो व्हाट डिफरेंस यू आर मेकिंग,
क्या कर रहे हो वहां पर सिर्फ एक काउंट बन के जा रहे हो क्या कि 50 लोग गए थे तो मैं भी उन 50 लोगों में एक था. What you did differently, that is more important, right? तो हमेशा वो जगह चूज करो जहां पर तुम कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाओ. एक नंबर बन के सिर्फ मत जाओ कहीं पर भी, भले वो क्लब हो, सोसाइटी हो, कोई ओपन सोर्स प्रोग्राम हो, कुछ भी हो. सब कुछ वो करो जो कुछ ना कुछ कर पाए खुद के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, राइट? क्योंकि हमको कम्युनिटी को भी हेल्प करना है. हम कम्युनिटी से इतना कुछ लेते हैं तो हमको वापस देना भी है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो वो हमेशा दिमाग में होना चाहिए. Yes, ma'am. And ma'am, we also got to know that you attended React India conference. What were the highlights of the conference and how did you come to know about it and how was your experience? To be very honest, like full sponsored Goa trip. I was, to be very honest, oh my god, when it was in August, maybe like last week in the August, I got this email that I'm selected for this full sponsored Goa trip. And the sponsor, like the person who sponsored me, Mr. Brandon Beer, he owns a startup flight control in USA, and he sponsored me for that scholarship. And only 3 students from all over the world, or around 200 or 300 applications were there, and they selected only 3 of us, like who are the students. So I was, to be very honest, over the moon. And I was like, oh my god, this is something that I was waiting for, क्योंकि मुझे बहुत बहुत पसंद है लोगों से इंटरेक्ट करना. तुम लोग मेरा लिंक्डइन और ट्विटर, स्पेसिफिकली अगर ट्विटर खोलोगे तो विल गेट टू नो कि मुझे कितना पसंद है लोगों से इंटरेक्ट करना, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना, एंड व्हाट लाइक अपना शेयर करना, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है. सो मुझे रिएक्ट इंडिया के बारे में ट्विटर के थ्रू ही पता पड़ा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ट्विटर के थ्रू ही वहां से पता पड़ा था कि रिएक्ट इंडिया स्कॉलरशिप दे रहा है फॉर लाइक रिएक्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस, एंड वो गोवा में होने वाली है. आई वाज लाइक ओके, अप्लाई करते हैं. मैंने अपना एप्लीकेशन पूरा प्रिपेयर किया था, एंड उस एप्लीकेशन में 10 क्वेश्चंस थे. मतलब आपको पूरा ऐसे बेस्ड आंसर्स वहां पे करने थे. तो मैंने बहुत अच्छे से आराम से बैठ के अपना एप्लीकेशन प्रिपेयर किया था. काफी रिव्यू भी करवाया था कुछ लोगों से कि मेरे आंसर्स कैसे हैं क्या. फिर मैंने अप्लाई किया. एंड देन मतलब जो सिलेक्टर्स थे, जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था, वो गूगल के कम्युनिटी मैनेजर्स थे और 1-2 स्पॉन्सर्स में से थे. तो दे सिलेक्टेड 3 ऑफ अस लाइक फॉर दिस. सो जब मैं वहां पर गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना ज्यादा अलग नजरिया देखने को मिला इंडस्ट्री का कि कितने लोग डाउन टू अर्थ होते हैं. लाइक हम वहां पे सब वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, राइट? एंड वी ओनली लाइक मुझे नहीं पता और भी अगर कोई स्टूडेंट आया होगा तो, पर वो टिकट लेके आया था, बट वी 3 वर स्पॉन्सर्ड, राइट? तो हम लोग को ऐसा लग रहा था यार एवरीवन इज वर्किंग प्रोफेशनल हियर, हम स्टूडेंट हैं, हम क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज होगा सब कुछ. बट पीपल वर सो सपोर्टिव. मतलब वो हम लोगों से कामली बात कर रहे थे कि क्या क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आगे क्या करना है फ्यूचर में. हमसे शेयर कर रहे थे सब कुछ. हमने इतना अच्छा फूड एंजॉय किया, इतना अच्छा पूरा बीच व्यू एंजॉय किया, रिजॉर्ट एंजॉय किया. बहुत सारे गेम्स थे, इतने अच्छे. मतलब जो स्पीकर्स थे वो काफी मतलब पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड से स्पीकर आए थे, तो हम लोग उनसे मिले, एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. एंड समहाउ आई फील लाइक वो मैं इसलिए क्रैक कर पाई थी क्योंकि मैंने इतना प्रोफाइल बिल्ड कर लिया था. तो लोगों को दिखता है कि जिस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन पूरा लिख रहे हो, अपनी जर्नी वहां पे शेयर कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है. सो या इट वर्कड फॉर मी. Ma'am, since you have very strong LinkedIn profile, ma'am, how can we create such profile? ओके, सो अगर मैं बोलूँ कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और उसको आज से ही अपना लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम करना शुरू करना है, दिस इज माय एडवाइस फॉर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स. सो व्हाट यू कैन डू इज, सपोज यू आर लर्निंग C++, राइट? क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चे C या C++ ही सीखते होते हैं. सो इफ यू आर स्टार्टिंग विद C and C++, what you can do, just share about 1 or 2 concepts, like what is oops, like how oops works with C++. You can share about it. आप एक अपना पोस्ट बना सकते हो, उसको डाल सकते हो. आप बता सकते हो कि आज मैंने ये टॉपिक लर्न किया है, आई एम लर्निंग C++, और मैंने आज इस टॉपिक पर इस टॉपिक के अराउंड पूरा सब कुछ पढ़ा है, क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आई एम शेयरिंग माय नॉलेज विद यू.
सो इन दिस वे क्या होगा ना, एक टाइम के बाद पहले तो आपको लगेगा यार कि सिर्फ 2 लोगों ने लाइक किया पोस्ट, फिर आपको लगेगा कुछ हो तो रहा नहीं है, मतलब जस्ट मैं तो सिर्फ पोस्ट किए जा रही हूँ, नो वन इज गेटिंग लाइक नो वन इज फाइंडिंग दिस कंटेंट हेल्पफुल। तो आपको एक टाइम के बाद जरूर, मुझे भी ऐसा लगा था इनिशियली कि यार किसी को कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है, मैं बिना बात के बस पोस्ट किए जा रही हूँ। कीप पोस्टिंग, डोंट स्टॉप। वो ही मौका है कि जब आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, करते रहो, पोस्ट करते रहो। तो इससे क्या होगा ना कि आपके आसपास जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड है, लाइक सपोज जो भी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे उनको पता पड़ेगा, ओके शी नोज दिस, ही नोज दिस, मतलब इसको ये चीज आती है। आपने वहां पे अपना काम का है जो भी आपका नॉलेज है वो ऑलरेडी बता दिया है कि मैं इसमें, मुझे ये पता है, क्यों, तभी मैं शेयर कर पाया हूँ, राइट। तो दैट इज द वन वे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कनेक्शन रिक्वेस्ट, मतलब जैसे लोग है ना कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने में बहुत हेजिटेट करते हैं, डोंट हेजिटेट। ऐसा डिसाइड कर लो कि दिन भर का 60 या 70 जो भी होता है उसका, आई डोंट नो लिंक्डइन का कितना कितने लोगों को एक दिन में भेज सकते हैं, तो जितने लोगों को रिक्वेस्ट भेज पाओ भेजो। एंड नॉट टू दिस स्कूल कॉलेज के पियर्स, उनको रिक्वेस्ट नहीं भेजना है। दैट आर नॉट काउंट एज कि आप आपके कुछ अच्छे कनेक्शंस ऐड कर रहे हो, नो। जिन भी लोग, जो भी लोग आपको इंस्पायर करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हुए, स्टूडेंट्स हुए, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। कोशिश करो कि आप हर एक कनेक्शन रिक्वेस्ट में एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेज पाओ, क्योंकि अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि वो क्या काम करते हैं, तो आप लिख सकते हो कुछ पर्सनलाइज्ड मैसेज उनके लिए। एंड द थर्ड थिंग इज कि जैसे आप स्क्रॉल करते हो ना, तो आप दूसरों का कंटेंट भी पढ़ते हो, राइट। क्योंकि सपोज मुझे मीनाक्षी का कुछ पोस्ट अच्छा लगा है, सो आई शुड कमेंट लाइक कि मुझे मीनाक्षी तुम्हारे इस कंटेंट से ये हेल्प मिली है, या आई फाउंड इट वेरी इंसाइटफुल, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, शेयर योर एक्सपीरियंसेस वहां पर। तो उससे लोगों को पता पड़ता है कि यार इस बंदी को ये चीज भी आती है, या ये स्टूडेंट इसमें अच्छा है, तो फोकस ऑन दिस स्टफ्स। तो उस तरीके से आप लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो ओवर टाइम। ओके मैम। Ma'am, is there any coding language which is preferred over others by companies? Like वो जो coding languages है जो अभी बढ़ते ट्रेंड के हिसाब से काफी चेंज हो जाती है, like we are more towards की जो जिसमें already available libraries हो और उसको बस import करना हो and we are done with that, या companies वो prefer करती है या फिर like any specific one? नो 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 नो, फंडामेंटल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, लोगों को बहुत आदत हो चुकी है, इवन आज की जो जनरेशन है, और ये 2027 बैच और 26 बैच जो आ रही है, इन लोगों को एकदम वेब 3 ब्लॉकचेन यही सब दिख रहा है। दे डोंट वांट टू गो थ्रू दी फंडामेंटल्स, जो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसके बिना वो वेब 3 या ब्लॉकचेन में भी आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, दिस इज द रियलिटी, और जितना जल्दी मान जाओगे उतना जल्दी अच्छा होगा। सो द थिंग इज कि यू कैन स्टार्ट विथ एनी लैंग्वेज, बट देखो यार सबके लिए अलग अलग होता है वो। मेरे लिए C++ के साथ शुरू करना फायदेमंद रहा, सो आई डिड दैट एंड इट वर्क फॉर मी। पॉसिबल कि युवराज के लिए वो ना काम करे, मतलब अगर वो C++ के साथ शुरू करे तो उसको नहीं जमे, या वो उसको ऐसा फील हो कि नो यार आई वेस्टेड माय टाइम और समथिंग लाइक दैट। बट फंडामेंटली अगर देखा जाए ना तो मतलब C++ से ही लोग शुरू करते हैं, क्योंकि C++ में कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना कंपैरेटिवली बेटर होता है, राइट। क्योंकि एक तो टाइम वाला भी रहता है उसमें कि वो वाला इशू भी आपका सॉल्व हो जाता है। अगर आप सीपी में घुसना चाहते हो तो C++ ही लोग प्रेफर करते हैं, जावा भी करते हैं, पर मेरे लिए C++ काम किया है तो मैं C++ में करती हूँ, तुम्हारे लिए जावा कर जाए तो उसमें कर लो। पर पाइथन में यूजुअली कंपनीज नहीं प्रेफर करती है, मतलब अभी तक मैंने जितने भी ओएस दिए हैं या जो भी मतलब कंपनीज का रहता है, तो वो जावा और C++ पे ही फोकस करते हैं कि अगर आपको कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इन्हीं दो में करो। इवन इंटरव्यू में भी मैंने ये देखा है कि एक इंटरव्यू था, आई क्रैक्ड दैट इंटरव्यू ऑल्सो, क्योंकि मुझे इसलिए याद है उसमें इंटरव्यू ने स्पेसिफिकली बोला था मुझे, वो शी वाज लाइक नो यू हैव टू सॉल्व इन ईदर C++ और जावा, आई डोंट एक्सेप्ट पाइथन। सो आई सेड नो, मतलब मेरा पाइथन है भी नहीं, सो डेफिनेटली मैं उसी में ही सॉल्व करूंगी। तो मतलब सेफ साइड पे रहने ज्यादा अच्छा है, मतलब इतना एक्सपेरिमेंट ना करें, जस्ट बी ऑन द सेफर साइड and go with either C++ or Java. That is my suggestion. Okay, ma'am. And ma'am,
like even getting jobs via LinkedIn is a bit difficult in this growing competition. So we would prefer like अभी हमारा focus उन मतलब ये question का focus उन बच्चों के लिए like जो आपकी batch के हैं या फिर जो अभी third year fourth year हो गया है but they are still finding some difficulty in getting jobs. वो LinkedIn पे apply भी कर रहे हैं but कोई response नहीं आ रहा है. And also for the 2024 batch जिनका भी fourth year चल रहा है, तो how to solve this issue and get noticed by the recruiters? यार देखो, समटाइम्स लक ऑल्सो प्लेज अ ह्यूज रोल, एंड ये रियलिटी है, ठीक है. जो लोग बहुत ऐसा बोलते हैं ना, आई वर्कड हार्ड दैट्स व्हाई गॉट इनटू दिस कंपनी, ऐसा नहीं होता है. हाँ भाई, तुम्हारा हार्डवर्क भी काम करता है, क्योंकि उसके बिना तो तुम इंटरव्यूज क्रैक ही नहीं कर पाते ना, अगर हार्डवर्क नहीं किया होता तो. पर मैं तो मानती हूँ, मतलब कोई माने या माने, लक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है. इट्स लाइक ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट 60-40 का रोल होता है. 60 लक होता है, 40 आपकी स्किल्स होती है, ठीक है. तो उसमें हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि तुम हार्डवर्क करते जाओ, एप्लीकेशंस फिल करते जाओ, किसी ना किसी दिन तो तुम्हारा लक भी तुमसे हार जाएगा एंड वो बोलेगा भाई तू ले ले, क्योंकि तूने ऑलरेडी इतना अप्लाई कर लिया कि अब तू ले ले. तो जैसे मेरे साथ भी हुआ, राइट, क्योंकि मैं इतना अप्लाई करती थी, यू वोंट बिलीव, मैं डेली के 2-4 एप्लीकेशंस अप्लाई करती थी, डेली के, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर. मतलब मैं थर्ड ईयर की भी बात मत करो, तो मैं सेकेंड ईयर के शुरू से इतना अप्लाई कर रही थी. तो एक टाइम के बाद तो मुझे ऐसा लगा था कि यार अब तो थक कर ही मुझे कहीं से आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा अप्लाई करने के बाद आप एक तो बहुत आपका मोटिवेशन पूरा चला जाता है. Yes, ma'am, और definitely. और वो इतना ज्यादा लोगों का सपोर्ट लगता है ना आपको आगे बढ़ते रहने के लिए. मेरे साथ तो वही हुआ था, एक टाइम पर मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, एंड आई वाज लाइक शीतल कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा. पर थैंक्स टू माय फ्रेंड्स एंड लाइक उन लोगों ने मुझे काफी बोला कि नहीं, कीप गोइंग, सो आई डिड दैट एंड इट वर्क फॉर मी. तो डोंट वेट फॉर लाइक अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरी किस्मत में लिखा नहीं है, 1 साल बात करूंगी क्योंकि तब लिखा होगा. डोंट बी लाइक दैट, बस करते जाओ, जो आ रहा है फिल करो, जो आ रहा है फिल करो. डोंट बी लाइक कि यार ये स्किल्स के साथ तो सिर्फ 40-50% ही मैच कर रहा है, पूरा 100% तो मैच ही नहीं कर रहा है. अगर 40% भी है ना मिनिमम, कर दो अप्लाई, आंख बंद करके अप्लाई कर दो. ये मेरा सजेशन है सबके लिए. मैम लाइक जो अभी 2023 के हैं, जो अभी पास आउट हो गए बट ड्यू टू दिस ले ऑफ्स एंड रिसेशन इन आईटी सेक्टर, उनको मतलब काफी स्टूडेंट्स हमारे सीनियर्स हैं जिनको नहीं मिल पाया है, या फिर ड्यू टू लाइक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स की हम 2 या 3 को ही रिक्रूट कर सकते हैं, वो नहीं क्रैक कर पाए. सो लाइक व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? उनको अभी लाइक क्या करना चाहिए? आई थिंक इतना अपसेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी मार्केट की सिचुएशन ही वैसी है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन मेरी कंपनी में भी हायरिंग फ्रीज लग चुका है, ठीक है. तो अभी चल ही वैसा रहा है मार्केट. अगर आपका ले ऑफ हो गया है या फिर आपको जॉब्स नहीं मिल रही, तो इतना अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है व्हाट यू डिजर्व, योर फैमिली नोज व्हाट यू डिजर्व. तो ये लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. खुद पे भरोसा रखो. अगर आप मेहनत कर रहे हो, और बहुत अच्छा टाइम मिला है ना कि जो Yes, 4 साल में नहीं कर पाए तो और कर लेते हैं, और अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, डीएसए और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, सिस्टम डिजाइन और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे लोग बिजी हैं उनके जॉब्स के साथ, तो वो ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हैं. तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कर सकते हो. तो डोंट बी लाइक कि यार मेरा तो सब खत्म हो गया, या आई एम नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी एंड ऑल. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. बी पॉजिटिव. आज नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद तुमको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. एंड अगर आप आपके करियर की शुरुआत किसी सर्विस बेस्ड कंपनी से भी कर रहे हो, एंड इफ यू आर स्टार्टिंग इट विद अ वेरी लो पैकेज, तो भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज करियर 30-40 इयर्स का होता है. ये इनिशियल 1-2 साल कुछ डिफाइन नहीं करने वाले, ठीक है. व्हाट इम्पोर्टेंट इज कि आप पॉजिटिव रहो और आप हार्डवर्क करना ना छोड़ो, वो बहुत जरूरी है. एंड यूईसी के स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक बहुत बड़ा मतलब मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ सभी बच्चों को जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है अभी, प्लीज वैसे फ्रेंड्स को चूज करो जो तुमको आगे बढ़ने के लिए धक्के मारे. उनके साथ मत रहो जो तुमको बोले अरे ये करके क्या करेगा, आजा पार्टी करते हैं, ये करके क्या करेगा, कुछ भी नहीं होगा,
देख लेंगे, मत रहो उन लोगों के साथ, क्योंकि तुम्हें तो अभी लग रहा है कि ठीक है अभी मजे कर लेते क्योंकि कॉलेज है, कॉलेज में सब मजे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन भर काम ही करना है। लाइक कभी पता है वो एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना, वो कॉलेज में भी आपको मेंटेन करना पड़ता है कि मजे भी कर लो, पढ़ाई भी कर लो। आज मैं जॉब करने लग गई हूँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ भी बहुत एंजॉय करती हूँ, मैं काम भी करती हूँ। ऐसे तो है नहीं ना कि जॉब लग गई अब तो बस रिमोट जॉब है, किसी को यस पता मैम, नहीं जैसे पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, सब अपने को धीरे धीरे उस तरह से बिल्डअप करना पड़ेगा। राइट, दिस इज वेरी ट्रू। तो यूईसी के स्टूडेंट्स को के लिए मेरा एक ही मैसेज है, प्लीज प्लीज बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है हमको, बहुत ज्यादा। हमारा कॉलेज हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ता है अब कि हम उसको आगे लेकर जाएं। डोंट बी लाइक कि मैं छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ या मैं एक छोटी जगह से हूँ, मेरे पास इतना एक्सपोजर नहीं है। तुम्हारे पास इंटरनेट है जिसका तुम बहुत अच्छे से यूज करते हो इंस्टाग्राम के लिए और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए, प्लीज उसको यूज कर लो कुछ अच्छी चीजों के लिए भी, क्योंकि इंटरनेट के जमाने में कोई छोटे गांव से नहीं होता है। ये है। मैम सिंस यू टॉक्ड अबाउट लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, मैम आप कुछ पर्सनल चैनल रिकमेंड करना चाहोगे कि इससे आप डीएसए पढ़ सकते हो या फिर इससे सिस्टम डिजाइन पढ़ सकते हो? मेरे लिए मतलब अलग अलग होता है। जैसे डीपी के लिए मैंने आदित्य वर्मा की प्लेलिस्ट देखी है। स्ट्राइवर का चैनल काफी बढ़िया है, मतलब अगर तुम शुरू से एकदम बिगनिंग से भी चालू करना चाहते हो, जीरो से भी, तो गो विद स्ट्राइवर्स चैनल, काफी अच्छा चैनल है। इसके अलावा तो मैंने मतलब ट्रीज के लिए कुछ अलग चैनल्स हैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, पर मैं उन्हीं का ही प्रेफर किया, मतलब अलग अलग लाइक डिफरेंट टॉपिक्स के लिए अलग अलग चैनल्स प्रेफर किए हैं, तो उससे हो जाता है, मतलब काफी अच्छे से हो जाता है। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो कुछ है ही नहीं। मैम आपने कोडिंग के लिए मतलब कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करे थे? लीड कोड। ओके। इनिशियली मैंने हैकर रैंक किया था जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में, जब मैं सी प्लस प्लस और जावा सीख चुकी थी ना, तो वो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए मैंने यूज किया था हैकर रैंक। जीएफजी भी मैंने यूज किया है, काफी क्वेश्चंस, आई थिंक अराउंड 100 क्वेश्चंस जीएफजी पे भी सॉल्व किए होंगे, आई डोंट नो द नंबर एग्जैक्टली, पर जीएफजी भी मैंने काफी अच्छे से यूज किया। कर सकते हो जीएफजी भी, बट लीड कोड इज बेस्ट, आई लव लीड कोड। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस लीड कोड। ओके, थैंक यू मैम, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक और यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। thank you, and I hope like you whatever I've mentioned in this interview, you found this insightful. And if like message to everyone who will watch this video, if you need any help, please feel free to ping me over LinkedIn or Twitter. I'm active on both the platforms. Please feel free to ping me anytime. And one more thing, please keep working hard, this is most important. And if you're looking for opportunities, like अगर तुम opportunities का ढूंढ रहे हो, तो please subscribe to Telegram channels like Dotware and Arshkol's channel. Please subscribe to those channels. वहाँ से opportunities के बारे में काफी अच्छे updates मिलते रहेंगे, and keep applying. Don't stop that. That is very much important. And thank you, Meenakshi and Yuvraj, for having me here. I had a great time with talking to you both. So thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, आपसे 4 साल तो कभी बात नहीं हुई, बट ये जो अपने 30-40 मिनट्स का इंटरेक्शन था, आई थिंक उसने सब कवर कर लिया। एंड वी आर रियली वेरी थैंकफुल कि आज हमको आपका ये चांस मिला। आपको लाइक आपका वीकेंड भी थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया होगा, बट रियली थैंक यू सो मच मैम। Thank you.